اسرائیلی دہشتگرد فوج کا خان یونس شہر پر خیموں پر حملہ، 18 فلسطینی زندہ جل کر شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس میں سیف زون قرار دیے گئے علاقے پر بمباری کی۔ خیموں میں آگ لگنے اور زندہ جل جانے کے بعد 18 شہید ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسرائیل تمام حدیں پار کر کے پاگل پن پر اتر آیا۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل نے خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایران میں حماس رہنما کو نشانہ بنایا گیا، کل کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی حساس انسان اسرائیل کے مظالم پر آنکھیں بند کر سکتا ہے؟ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا قتل ایران کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی تھا۔ سعودی نائب وزیر خارجہ ولید الخریجی نے OIC اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کے خود مختاری اور اندرونی معاملات میں مداخلت کو مسترد کرتے ہیں، اور اسماعیل ہانیہ کا قتل ایران کی خود مختاری کے خلاف تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 پر دستخط کر دیے، جس کے بعد الیکشن ترمیمی بل اب باقاعدہ ایکٹ بن گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گزشتہ شب الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 پر دستخط کیے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے بل سینٹ سیکریٹریٹ کو بھیجوا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن ایکٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن آج ہی جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، اسے دلخراش واقعات کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی۔ قومی یکجہتی، اتحاد و اتفاق کی جتنی آج ضرورت ہے، کبھی نہیں تھی۔ سیاسی حکومت اور اداروں کے درمیان ایسا تعاون پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ماضی اور آج کا فرق یہی ہے کہ مشاورت سے چل رہے ہیں۔ اسلام آباد میں علماء مشائخ کانفرنس کے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اور سپاہ سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے IMF پروگرام آخری ہو۔ اسٹیشنری پر ٹیکس چھوٹ دینے سے انکار کر دیا۔ سرائے کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹیشنری کے ٹیکس پر ورچوئل مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ہائی لائٹرز، پنچنگ مشینز، پینسل باکس پر GST ٹیکس برقرار رہے گا۔ IMF کا کہنا ہے کہ پین، سٹیپلر، مارکر، کیلکولیٹر، شارپنرز پر ٹیکس برقرار رہے گا۔ بچوں کے آرٹ سپلائز اور سٹیکی نوٹس پر بھی ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرح 5 سے 7% تک لائیں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس سید نوید قمر کی زیر صدارت ہوا، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بریفنگ دی۔ قائمہ کمیٹی کے ارکان نے پالیسی ریٹ کو 19.5% کی سطح پر رکھنے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ درآمدات پر تمام پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ پاکستان کو رواں مالی سال مجموعی طور پر 26 ارب 20 کروڑ ڈالر قرضہ واپس ادا کرنا ہے۔
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम मादरे वतन के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। उन्होंने कहा कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की मिसाल रकम की। पूरी कौम को अपने शौदा पर फख्र है। पाकिस्तान कौम अपने शौदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। बांग्लादेश की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। कहा उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन होंगे और तेजी से मामूल पर आएंगे। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम अहम मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज में दाखिल। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का 5वां दौर आज शाम को शुरू होगा। जमात इस्लामी की जानिब से आज मुतालबात के हक में मरी रोड पर मार्च का ऐलान किया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमा रहमान ने कहा कि आज धरना बड़े जल्द से और मार्च में तब्दील होगा। कारकुनों से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमा रहमान ने कहा कि टैक्स के बाद तनख्वाह की हैसियत अब क्या रह गई। आटा, चीनी, दाल, स्टेशनरी और हर चीज पर टैक्स लगा दिया गया। मिडिल क्लास और सफेद पोश लोग आखिर जाएं कहां? क्या लोग डाकू बन जाएं? नौजवानों को इस काम पर ना लगाया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात अतातुल्लाह तारड़ ने कहा है कि जमात इस्लामी से बेशतर मामलात पर इत्तफाक हो गया। कुछ मामलात तहरीरी तौर पर तय हुए। आज फिर एक नशिस्त होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अतातुल्लाह तारड़ ने कहा कि जमात इस्लामी से मुस्बत बातचीत हुई। वजीर आजम का एजेंडा है कि हमने बिजली की कीमतें कम करनी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को सूबे में क़याम अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की, जिसमें सूबे की मजमूई सूरत हाल, अमन आमा और करम के अफसोसनाक वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इन वाक़यात पर सख्त तशवीश का इज़हार किया और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए कसीर-ओ-जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीकी सरजमीन पर कत्ल की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के हवाले से मकामी इदारों ने भी तहकीकात शुरू कर दी। आसिफ मर्चेंट कराची के शहरी हैं और इस हवाले से सीटीडी ज़राए का कहना है कि आसिफ रजा मर्चेंट का कराची में अब तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है और न ही उनके पाकिस्तान में किसी जुर्म में मुलविस होने का पता चला है। इस हवाले से दीगर तहकीकाती इदारे भी मालूमात हासिल कर रहे हैं। भारत की तरफ से सेंतास माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी। भारतीय हटदर्मी के बाद गुज़श्ता 2 साल से पाक भारत इंडस वाटर कमीशन का इजलास मुमकिन न हो सका। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की जानिब से भारतीय मनसब को इजलास के लिए मुताबिक बार लिखा गया, लेकिन भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर की जानिब से पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया गया।
पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज रात होगा, जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम समेत 12 एथलीट्स एक्शन में होंगे। पहले मरहले में तमाम 12 एथलीट्स 3-3 मरतबा जेवलिन फेंकेंगे। मजमूई 6 बारियों में सबसे बेहतर थ्रो प्लेयर की हतमी थ्रो करार पाएगी। शॉर्ट लिस्ट में अरशद नदीम का नंबर 4था है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के नजरसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेशी टीम 10 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी। बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान स्वाइन्स के खिलाफ 2 4 रोजा और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। तमाम मैच इस्लामाबाद क्लब में खेले जाएंगे। पहला 4 रोजा मैच 13 से 16 अगस्त तक होगा, जबकि दूसरा 4 रोजा मैच 20 से 23 अगस्त तक खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस 26, 28 और 30 अगस्त को खेले जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह बढ़ने लगी। हुकाम ने अतराफ की आबादियां खाली करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी में बारिश से मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसके बाद इंतजामिया ने फौजी दस्ते, रेस्क्यू 112 और दीगर इदारों को तलब कर दिया है। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से नदी नालों में तूफानी आ गई। पीडीएम ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।